चलिए बात करते हैं क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकंड डिवीज़न। पहला तो हमने पढ़ा बैक्टीरिया और ये सेकंड है अलगी। आपने बैक्टीरिया के बारे में पूरी जानकारी ली। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अलगी एंड द लाइफ ऑफ algae अराउंड अस। You are wondered to see that the pond looks green, the water of the ponds looks green. Most of the cases the stagnant water, जो पानी बहुत दिनों से जमा है, वो बिल्कुल कैसा दिखता है भाई? ग्रीन दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ alga. कौन बनाता है उसको ग्रीन? alga. alga most of the time found in either in the salty water or fresh water. They cover the surface of the water because they are mostly autotrophic. They make their own food, but there is a problem. You cannot see there is a leaves, root or a stem visible in alga. Then how they prepare the food? Will the chlorophyll present in the alga make them able to prepare the food? No. Alga prepare the food with the help of friends called fungi, because alga having no root system. Therefore, they cannot obtain the water and mineral for the photosynthesis. That's why they live in symbiotic relationship with the fungi. Fungi provide them water and mineral to prepare the food. Okay, confirm how and where alga found. Alga mostly found in aquatic environment, either the salty water, marine water or fresh water. Sometimes they found on soil and the bark of tree. It means they may be found on the land also. Okay, most of the alga are unicellular. Some of them are multicellular. Either they are unicellular or multicellular. They are plant like because they have chlorophyll. But मैंने बता दिया वो खुद फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं करता, इसलिए वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है। कंफर्म। चलो बात करते हैं, ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं अलगा हैविंग द डिफरेंट कलर। दे आर मोस्टली ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बट दे हैव अदर कलर पिगमेंट ऑल्सो। याद होगा, आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट. Chloroplast give the green color, chromoplast give the different colors, and leucoplast help to store the food. Okay, let us move to the next. Why they have different color? Because they have the different color pigment other than the green color. Okay, now alga may be unicellular or multicellular, and alga either live in separate or in colonies. याद रहेगा, either they live in separate or in colonies. ठीक है. Some alga move or some alga do not move. Some alga move with the help of hair-like structure. Okay. The hair-like structure is called what? That is called flagella. क्या बोलते हैं उसको? Flagella. Hair-like structure on the body which help them to move from one place to another is called flagella. That the example of unicellular alga is Chlamydomonas and diatoms are some example of unicellular alga. Okay. Now there is another alga that is very fascinating to us. That is chlorella. It is non-motile. It is non-motile. It means it cannot move from one place to another, live in a same place. Okay. They are actually the rich source of protein, vitamin and mineral. Therefore, they are some
Japan and some other places alga used as a food and sometimes it is used to prepare the some other food item. Confirm? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अलगा के बारे में. पहला क्या समझ में आया? अलगा यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है. देयर आर सम एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर अलगा. स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, सी वुड्स आर सम एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर अलगा. देयर इज उल्वा, मेराइन इन्वायरमेंट में रहता है, चारा फ्रेश इन्वायरमेंट में रहता है और सी वुड आर मल्टीसेलुलर. ओके, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता, एसेक्सुअली करता है आइदर बाय स्पोर फॉर्मेशन और द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. स्पोर फॉर्मेशन आपने पता होगा क्लास 7th में आपने रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा. ठीक है, उसमें आपने देखा स्पोर्स आर द सम टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म ओवर द सरफेस. Under the favorable condition they burst out and generate the new organism. Vegetative reproduction, this is the parts, this is the way of reproduction in which plant generate or reproduce the new plant with the help of the leaves, stems, root. याद आया vegetative reproduction? Good. चलो, these are the some things about the alga. Again I can repeat yourself. Alga is either unicellular or multicellular. They are plant-like organisms because they prepare their own food. They live in either fresh water or marine water or sometime on the land and on the bark of the tree. They have different color other than the green color because they have different color pigment. Okay, there are some filament रहता है उसके बॉडी के ऊपर. ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद. चलिए अब देखते हैं अलगी के बाद फंजाई का दुनिया. फंजाई का दुनिया भी हमारे आसपास माइक्रोस्कोपिक है, आंखों से तो दिखता नहीं है लेकिन ये हर जगह मिलता है. ब्रेड आपने खाया होगा, बड़ी फ्लफी लगता है और मज़ेदार लगता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ द फंजाई दैट इज द ईस्ट. चलो जानते हैं इसके बारे में. ये भी कैसा है? ये भी प्लांट की तरह दिखता है बिकॉज दे हैव द नेचर ऑफ द प्लांट लाइक दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. दैट्स व्हाई दे लिव इन symbiotic relationship with the alga. Alga have chlorophyll and fungi provide water and mineral for the photosynthesis. It means fungi is plant-like organism having true leaves, stem and root. याद रहेगा? चलो, कैसा रहता है ये? symbiotic relationship में रहता है. किसके साथ? किसके साथ रहता है ये? ये रहता है आपको अलगी के साथ. कंफर्म. चलो आगे बढ़ते हैं. दे हैव सेल वॉल, दे हैव ट्रू सेल वॉल बट somehow alga do not possess the true cell wall. Some developed alga having the cell wall. It means fungi is developed plant like structure but alga is a simple plant like organism. ओके, चलो सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया. थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. दे आर फाउंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ऑन फूड आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स. जो आप फ्रूट के जो जूसेस बनाते हो उस सब को स्पॉइल करने में इसी का हाथ है. ओके, ब्लैक टाइप का आपने ओनियन और चपाती और ब्रेड पे देखा होगा. जब आप ब्रेड, ओनियन और चपाती को 2-3 दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसके सरफेस पे एक ब्लैक पाउडर जैसा सब्सटेंस बन जाता है. दिस इज द ड्यू टू द फंजाई. वो क्या है? फंजाई है जो आपको ओनियन के ऊपर ब्लैक डस्ट बना देता है, ब्रेड पे डस्ट बना देता है और चपाती पे डस्ट बना देता है. फंजाई भी यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर होता है. कुछ एग्जाम्पल, ईस्ट और माइल्ड्यू आर सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई बट माउल्ड एंड मशरूम आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर फंजाई. याद रहेगा. फटाफट आगे बढ़ते हैं. फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों कर सकता है. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 6. ये हो गया एडोबिक.
और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन करता है। आइदर दे रिस्पायर एरोबिकली और अनएरोबिकली, बिना ऑक्सीजन के और विथ ऑक्सीजन दोनों की रेस्पिरेशन कर देता है। आगे का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दी आर आइदर सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इट मीन्स दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, यानी वो पैरासाइट की तरह भी काम करता है, सिम्बियोटिक की तरह भी काम करता है, सेप्रोफाइट की तरह भी काम करता है। सड़े गले चीज़ों पे, ऑर्गेनिक मैटर पे रहता है, उसको डिकम्पोज करता है। याद रहेगा। एक मज़ेदार बात बता दूं कैसे बनाता है केक को फ्लफी। चलो बनाते, बड़ी मज़ेदार लगता है खाने में। ईस्ट को जब हम ऐड करते हैं कोई भी फूड आइटम में, जैसे आपने राइस में देखा, जैसे आपने व्हीट में देखा, अगर उसमें मिला देते हैं तो क्या करता है, उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट रहता है उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कोहल में। और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल इनटू द स्पेस ऑफ द डव। वो जो आटा गूथा जाता है ना पानी के साथ मिक्स करके, उस आटे के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या चला जाता है, ईस्ट। और ईस्ट रिस्पायर करना शुरू करता है अनएरोबिकली और क्या निकालता है, CO2 गैस। वो CO2 गैस जब स्केप आउट होके बाहर निकलता है तो केक को क्या बना देता है, फ्लफी बना देता है, स्पेस उसमें डाल देता है, जिससे वो क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। अब ये जो अल्कोहल आप देख रहे हो इसको किसमें यूज किया जाता है, ये आपको मेडिसिन में यूज किया जाता है और बियर वाइन इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। अल्कोहल का भी यूज हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला उसका भी यूज हो गया ना भाई। फंगी हमारे लिए बड़ी मज़ेदार, आइदर दे आर हार्मफुल और यूजफुल। हो गया टॉपिक ख़त्म किसका, अलगी का। इससे पहले किसका पढ़े थे, फंगी का ख़त्म हुआ, उससे पहले अलगी का ख़त्म हुआ, उससे पहले बैक्टीरिया का ख़त्म हुआ, और कुछ लेके आपके सामने हाजिर होते हैं तुरंत। फटाफट इसको कॉपी में लिखो। चलो शुरू हो जा रही है। अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज अ फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज look like animal. It means it is the first unicellular animal like organism. It is first. Okay, for example paramecium that is like sleeper की तरह रहता है, वो फिसलता रहता है, move with the help of cilia. cilia की हेल्प से, cilia are the hair like structure present, लंबा लंबा hair like structure होता है जिसके हेल्प से, ठीक है, प्रोजेक्शन, small hair like projection on the body of paramecium help them to move. आपने देखा होगा ये पैरामीशियम ले लीजिए इस टाइप का, उसके बॉडी पे इस टाइप का रहता है। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीलिया। क्या है ये है पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से वो मूव करता है। सेकंड एग्जांपल आप ले लो अमीबा का। अमीबा का तो अपना कोई शेप ही नहीं होता है, कोई भी शेप बना दो तो ये किसका शेप हो जाएगा, अमीबा का शेप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो तो बल्कि कभी कभी ये किसका शेप हो गया, ये अमीबा का शेप हो गया। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर दैट इज सीडोपोडिया, ये मूव करता रहता है। ये क्या करता है, अपने शेप को चेंज करता रहता है रेगुलरली, विच हेल्प देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑल्सो हेल्प देम टू ऑब्जर्व द फूड फ्रॉम द सराउंडिंग। द थर्ड एग्जाम्पल इज यूग्लेना। यूग्लेना इज द फर्स्ट प्रोटोजोआ, look like animal but prepare their own food with the help of photosynthesis। याद रहेगा यूग्लिना सबसे अलग है कि नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज ट्रिपेनोसोमा, मूव विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। ट्रिपेनोसोमा मूव विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। याद रखना फटाफट, चलो रहता कहाँ है वो, प्रोटोजोआ फाउंड
especially in the water that is stagnant, cannot move. They are found in the pond, soil, ocean and animal fishes. ठीक है, एनिमल का जो फिशेस होता है उस पे रहता है, बिकॉज दे आर हेटेरोट्रॉपिक, दे डिपेंड ऑन द फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ एक्सेप्ट यूग्लेना आर हेटेरोट्रॉपिक, दे डिपेंड ऑन द अदर organisms for the food. Okay, some of them feed on the other protozoa itself. कुछ दूसरे प्रोटोजोआ पे ही फीडिंग करते हैं. But some of them are parasite. They live inside the body of the other organisms to get the nutrition. Come to the next properties of protozoa. They always only live in the moist condition. You just remember, they always live in the moist condition and become inactive in what type of condition? Dry condition. एवं 80 डिग्री सी. आप देखोगे अगर 80 डिग्री सी और एवं हो जाता है, कितना डिग्री सी? 80 डिग्री सी से ज़्यादा अगर होता है तो क्या हो जाता है? ये इनएक्टिव हो जाता है और दे जस्ट लूज द वाटर, स्टार्टेड लूजिंग द वाटर एंड sometimes they produce the thick covering and they dormant, they hide themselves till the condition became favorable for the survival. याद रहेगा, कॉपी में लिखते चलना इसको. ईस्ट के बारे में बता दूं इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था. अभी जो हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे उससे पहले फंगी पढ़े थे, उससे पहले अलगे पढ़े थे. फंजाई में आपने एग्जाम्पल देखा था किस्ट का. ईस्ट का जो क्या करता है, ये शुगर को किस में ब्रेक कर देता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में. याद होगा अल्कोहल का किस में यूज होता है? बेवरेज इंडस्ट्री में यूज होता है, जिसमें मेडिसिन बनाने में और वाइन बनाने में यूज होता है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं हम लोग? फर्मेंटेशन. दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर इन 1857. कंफर्म हो गया टॉपिक, समझ में आ गई? फटाफट सभी नोट्स करना है, इसको एक एक टॉपिक को बार बार पढ़ना है. एक बार बता दूं क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, एनिमल लाइक होता है. ठीक है, मूव करता है, एक जगह पे बिल्कुल नहीं रहता है. ज़्यादातर ये कहाँ रहता है? स्टेगनेंट वाटर में रहता है, सॉइल में भी रह सकता है, ओशन में भी रह सकता है, एनिमल फिशेस में रह सकता है. ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, पैरासिटिक होता है और saprophytic होता है. They live in only in moist condition. If condition is harsh, they just start losing the water and become dormant. हो गया ना, फिनिश. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बाद में. चलो शुरू हो जा रही है. अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ इज अ फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज look like animal. It means it is the first unicellular animal like organism. It is first. Okay, for example paramecium, that is like sleeper. Sleeper की तरह रहता है, वो फिसलता रहता है. Move with the help of cilia. cilia की हेल्प से. cilia are the hair like structure present. लंबा लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके हेल्प से, ठीक है, प्रोजेक्शन, small hair like projection on the body of paramecium help them to move. आपने देखा होगा ये पैरामीशियम ले लीजिए इस टाइप का, उसके बॉडी पे इस टाइप का रहता है. दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीलिया. क्या है ये है पैरामीशियम. ठीक है, पैरामीशियम क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से वो मूव करता है. सेकंड एग्जांपल आप ले लो अमीबा का. अमीबा का तो अपना कोई शेप ही नहीं होता है. कोई भी शेप बना दो तो ये किसका शेप हो जाएगा? अमीबा का शेप हो जाएगा. ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो तो बल्कि कभी कभी ये किसका शेप हो गया? ये अमीबा का शेप हो गया. और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर दैट इज सीडोपोडिया. ये मूव करता रहता है. ये क्या करता है? अपने शेप को चेंज करता रहता है रेगुलरली, विच हेल्प देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑल्सो हेल्प देम टू ऑब्जर्व द फूड फ्रॉम द
surrounding. The third example is Euglena. Euglena is the first protozoa, look like animal but prepare their own food with the help of photosynthesis. याद रहेगा यूग्लिना सबसे अलग है कि नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है. ओके, मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज ट्रिपेनोसोमा. मूव विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स. ट्रिपेनोसोमा मूव विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स. याद रखना फटाफट. चलो, रहता कहाँ है वो प्रोटोजोआ? फाउंड स्पेशली इन द वाटर दैट इज स्टेगनेंट, कैन नॉट मूव. They are found in the pond, soil, ocean and animal feces. ठीक है, एनिमल का जो फीसेस होता है उस पे रहता है. बिकॉज दे आर हेटेरोट्रॉपिक, दे डिपेंड ऑन द फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ एक्सेप्ट यूग्लेना आर हेटेरोट्रॉपिक, दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड. ओके, सम ऑफ देम फीड ऑन द अदर प्रोटोजोआ इटसेल्फ. कुछ दूसरे प्रोटोजोआ पे ही फीडिंग करते हैं. बट सम ऑफ देम आर पैरासाइट, दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट द न्यूट्रिशन. कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोजोआ. दे ऑलवेज ओनली लिव इन द मॉइस्ट कंडीशन. यू जस्ट रिमेंबर, दे ऑलवेज लिव इन द मॉइस्ट कंडीशन एंड बिकम इनएक्टिव इन व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन? ड्राई कंडीशन एवं 80 डिग्री सी. आप देखोगे अगर 80 डिग्री सी और एवं हो जाता है, कितना डिग्री सी? 80 डिग्री सी से ज़्यादा अगर होता है तो क्या हो जाता है? ये इनएक्टिव हो जाता है और दे जस्ट लूज द वाटर, स्टार्टेड लूजिंग द वाटर एंड समटाइम दे प्रोड्यूस द थिक कवरिंग एंड they dormant, they hide themselves till the condition became favorable for the survival. याद रहेगा, कॉपी में लिखते चलना इसको. ईस्ट के बारे में बता दूं इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था. अभी जो हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे उससे पहले फंगी पढ़े थे, उससे पहले अलगे पढ़े थे. फंजाई में आपने एक एग्जाम्पल देखा था किस्ट का. ईस्ट का जो क्या करता है, ये शुगर को किस में ब्रेक कर देता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में. याद होगा अल्कोहल का किस में यूज होता है? बेवरेज इंडस्ट्री में यूज होता है, जिसमें मेडिसिन बनाने में और वाइन बनाने में यूज होता है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं हम लोग? फर्मेंटेशन. दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर इन 1857. कंफर्म हो गया टॉपिक, समझ में आ गई? फटाफट सभी नोट्स करना है इसको, एक एक टॉपिक को बार बार पढ़ना है. एक बार बता दूं क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, एनिमल लाइक होता है. ठीक है, मूव करता है, एक जगह पे बिल्कुल नहीं रहता है. ज़्यादातर ये कहाँ रहता है? स्टेगनेंट वाटर में रहता है, सॉइल में भी रह सकता है, ओशन में भी रह सकता है, एनिमल फिशेस में रह सकता है. ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, पैरासिटिक होता है और सैप्रोफाइटिक होता है. दे लिव इन ओनली इन मॉइस्ट कंडीशन. इफ कंडीशन इज हार्श दे जस्ट स्टार्ट लूजिंग द वाटर एंड बिकम डॉर्माइट. हो गया ना, फिनिश. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बाद में. चलिए बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लेस्ट वेरी डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इवन इट इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज द वायरसेस. इट इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन बाय इवन द सिंपल माइक्रोस्कोप. इट इज़ ओनली बी विजिबल विद द हेल्प ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो डेंजरस. Why it is very dangerous? Because it is on the borderline of the living and non-living. You just remember, it is on the borderline of living and non-living. Why? Because it is in surrounding non-living. Cannot reproduce, cannot have when it is in environment, but become living, enters into the living body. Once they enters into the living body either through the nose or the mouth, they just enter into the body. Okay, क्या करता है? बॉडी में इंटर करता है और यूज करता है रिसोर्सेज ऑफ द सेल. व्हेन दे एंटर्स इनटू द बॉडी, यूज द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल
to grow and multiply. Once the number of viruses multiply rapidly into a cell burst out and spread the viruses to the other cells. It means grow gradually, it will infect all the cells in our body and become very ill. Even we are not aware how to protect us from the viruses, because viruses do not have a definite biochemical process, since it cannot have cell wall. उसके पास सेल वॉल ही नहीं होता है तो न्यूक्लिक मटेरियल ही नहीं होगा, इसका मतलब पता ही नहीं चलता सेल वॉल कैसे ग्रो करता है, कैसे मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि उसके पास अपना कोई जीने का तरीका ही नहीं है. देयर इज नो डिफरेंट वे हाउ दे बिकम एक्टिव ऑलवेज. इट इज ओनली बिकम एक्टिव वंस दे इंटर्स इनटू आवर बॉडी. कंफर्म हो गया सर वायरस से बच के रहने का. कोरोना वायरस याद आया क्यों है मुश्किल इससे बचना, क्योंकि हमको इसके पाथवे का बारे में पता नहीं है. हाउ दे लिव, हाउ दे सर्वाइव, वी डू नॉट नो. ओनली इट विल बी एक्टिव वंस दे इंटर्स इनटू आवर बॉडी. दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक केयर. डू नॉट अलाउ कोरोना वायरस टू इंटर इनटू आवर बॉडी. ओके, एकदम अपने आप को बचा कर रखो, सेफ रखो. लोगों के संपर्क में आने से बचो. जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं हमेशा क्या लगाने का, मास्क लगाने का है, डिस्टेंस बनाने का, ये सब पता है आप लोगों को, इसलिए मैंने बताया. बैक्टीरिया का सेफ, जैसे बैक्टीरिया का अलग अलग सेफ होता है, वायरस का भी अलग अलग सेफ हो सकता है. रॉड लाइक बैक्टीरिया, रॉड लाइक सेफ होता है जिसको हम लोग बैक्टीरियल वायरस बोलते हैं. स्फेरिकल हो सकता है जिसका एग्जाम्पल है ममेलियन, यानी वायरसेस में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑल्सो लाइक द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, समझ में आ गया. फटाफट किससे दिखता है ये, पावरफुल माइक्रोस्कोप से दिखता है. कैसे इंटर होता है ये, थ्रू द नोज और थ्रू द माउथ, इंटर इनटू द बॉडी एंड यूज द सेल रिसोर्सेज एंड मल्टीप्लाई, ग्रो एंड infect the cell. Once cell get infected, they burst out and damage the other cell, and thus it become very dangerous for human community. So be care, keep yourself safe. Thank you.